السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کچھ دیر بعد ہی نعمان علی باہر آیا تو باران دلشے صوفے پر خود پر گمبھیر سنجیدگی طاری کیے بیٹھا تھا۔ سارے دلہے والے بھی منتظر تھے کہ اتنا بڑا آدمی آخر یہاں اس معمولی سی تقریب میں کیوں اور کس لیے آیا ہے۔ باران دلشیر اور زاویار خانزادہ کو یہاں کون نہیں جانتا تھا، سب ہی تو ان کے سٹیٹس، ان کی حیثیت سے واقف تھے، تبھی مروب سے وہاں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ان سب میں جو سب سے بے قرار تھا وہ دلہا ارمان اکبر تھا، جس کا نکاح بلا وجہ ان لوگوں کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو رہا تھا۔ نعمان علی باران کے روبرو آیا تھا۔ نعمان علی، مجھے تنہائی میں تم سے بات کرنی ہے، باران نے کہا اور اپنی ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ تمام مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں لے گئی، مگر علی اکبر وہیں بیٹھا رہا۔ علی اکبر میرے بچپن کا دوست ہے، بہت گہری دوستی ہے ہماری، میرے ہر دکھ سکھ کا ساتھی ہے یہ، آپ اس کے سامنے بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں سر، نعمان علی نے سہولت سے کہا تھا۔ اب وہ سب آمنے سامنے براجمان تھے، ضیاء، زین اور محلک بھی وہیں بیٹھے تھے۔ باران نے زاویار کی جانب دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہوں میری مشکل حل کرو یار۔ تب زاویہ نے اپنا گلا کھنکارا تھا۔ نعمان علی، دراصل بات یہ ہے کہ احان دلشے تمہاری گڑیا سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کے جانے کے بعد اس نے ہمیں دیر سے بتائی، جس کے لیے ہم بہت زیادہ معذرت خواہ ہیں، مگر اب ہم چاہتے ہیں کہ ریم کا نکاح احان سے ہو کیونکہ وہ اسے بہت زیادہ چاہتا ہے۔ زاویہ نے بات مکمل کی اور نعمان علی اور اکبر کے سروں پر گویا بم پھوڑا۔ نعمان علی دم بخود سا رہ گیا۔ تب اس نے شکایتی نگاہوں سے باران دلشیر کی جانب دیکھا۔ باران دلشیر کے چہرے پر ناقابل فہم سے تاثرات تھے۔ تب نعمان علی نے ایک نظر علی اکبر کی جانب دیکھا تھا، جس نے نظروں ہی نظروں میں اسے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جس تکلیف سے میری بچی گزری ہے، میرا نہیں خیال وہ احان بابا کا ساتھ اب قبول کرے گی۔ احان بابا نے اس کا رشتہ دھتکار دیا تھا، اس نے نہیں، اور اب جب اس کا نکاح ہونے والا ہے تو یہ سب زاویار اور باران کو اندازہ نہیں تھا کہ نعمان علی اکبر کے سامنے بے تاثر سے لہجے میں ماضی کی باتیں یوں دہرا دے گا، مگر جو اس کے دل میں تھا وہ بیان کر دیا۔ باران دلشے نے پہلو بدلا۔ زاویار پھر سے نعمان علی سے مخاطب ہوا۔ نعمان علی، وہ اپنی کی گئی تمام غلطیوں پر پشیمان ہے، وہ سب ٹھیک بھی کر دے گا، اسے ایک موقع دو۔ میرا نہیں خیال کہ گڑیا کو اس سے زیادہ کوئی خوش رکھ پائے گا۔ تمہارے دوست کے بیٹے کو کوئی بھی اچھی سے اچھی لڑکی مل جائے گی، کیونکہ وہ ریم میں ذاتی طور پر انوالو نہیں ہے، مگر احان دلشیر کی زندگی تمہارے سامنے ایک کھلی کتاب کی مانند گزری ہے۔ وہ کچھ پرسنل وجوہات کی وجہ سے ہمیشہ لڑکیوں سے دور رہا ہے، اگر کسی کی جانب متوجہ ہوا ہے تو صرف ریم نعمان علی ہے۔ وہ ذاتی طور پر اس میں انوالو ہو چکا ہے۔ ریم نعمان علی کے بعد اس کی زندگی میں کوئی بھی نہیں آ سکتی، یہ تم اچھے سے جانتے ہو، اور پھر اس کا سٹیٹس، گڑیا کا مستقبل محفوظ رہے گا۔ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے کرم سے دنیا کی ہر وہ نعمت موجود ہے جو ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے خواہش کرتا ہے۔ زاویہ نے طویل تر گفتگو کے بعد خاموشی اختیار کی تھی۔ ایسے سونے کا کیا فائدہ سر جو کان کاٹتا ہوں؟ زاویار کی سٹیٹس والی بات پر نعمان علی نے تلخی سے کہا تھا۔ میری گڑیا احان بابا کی وجہ سے کتنی تکلیف سے گزری، کتنا روئی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں کیسے مان لوں کہ احان بابا اسے خوش؟ اس کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں نعمان علی، وہ خوش رہے گی، میں کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ باران دلشے نے نعمان علی کی بات کاٹی تھی اور پھر وہ بولتا چلا گیا۔ باران دلشیر کی آنکھوں میں ایک ایسا تاثر تھا کہ نعمان علی نے علی اکبر کی جانب بے چارگی بھری نظر ڈالی تھی۔ تم کھلے دل سے اپنی بچی کے لیے اپنا فیصلہ لو نعمان، تمہیں جو گڑیا کے لیے بہتر لگتا ہے اسے اس کے لیے منتخب کرو، میری فکر مت کرو، میں کل بھی تمہارا دوست تھا اور ہمیشہ رہوں گا، تمہارے کسی فیصلے کا اثر ہماری دوستی پر نہیں پڑے گا، ہماری دوستی ویسے ہی برقرار رہے گی، تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ لو۔ علی اکبر، جو نعمان علی کے ملکان کی نگاہوں میں اچھی طرح پڑ چکا تھا کہ اب وہ واقعی تنہائی میں اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اٹھا اور نعمان علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتا وہاں سے ڈرائنگ روم چلا گیا تھا۔
पीछे अब बारान पूरी तरह से नुमान अली की जानिब मुतवज्जे हुआ था, और फिर बारान दिलशेर और नुमान अली के बीच जो भी बात हुई, नुमान अली ने इसके बाद एहान दिलशेर के हक़ में फ़ैसला दे दिया था। इसने जाकर अली अकबर को अपने फ़ैसले से आगाह किया तो अली अकबर खामोशी से अपनी फ़ैमिली के हमरा वहाँ से वापस लौट गया। नुमान अली की कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेकरारी से बेड पर बैठी अपनी उंगलियां चटका रही थी। नुमान अली के कंधे झुके हुए थे और कदम शिकस्ता से, जिन्हें देख वो तड़प कर खड़ी हुई थी। बाबा, रीम ने इन्हें पुकारा। अली अकबर, लोग और सारे मेहमान जा चुके हैं रीम। मैंने तुम्हें एहान दिलशेर के निकाह में देने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला भी किसी मसलिहत के तहत करना पड़ा है मुझे। मेरी गुड़िया को अगर मेरे फ़ैसले से कोई एतराज़ है तो वो अपने पापा को बता सकती है। नुमान अली ने इसकी जानिब देखते कहा तो रीम ने फटी फटी आंखों से अपने पापा की जानिब देखा। तो क्या इसके तमाम वहम वसवसे सच साबित हो गए थे? इस सफाक सफत आदमी ने महज अपनी छोटी अना इस सफाक सिफत आदमी ने महज अपनी झूठी अना, ज़िद और बेहिसी की तस्कीन की खातिर इसके पापा को ब्लैकमेल किया है। लेकिन वो क्या करती, अब अपने पापा को ज़बान दे चुकी थी कि इसे इनका हर फैसला मुकद्दम होगा। और फिर इस जालिम व जाबिर शख्स ने जाने कैसे इसके बाबा पर दबाव डाला था, तो अपने पापा को बचाने की खातिर इसे वो सब कुछ करना गुजरना था जो इसके लिए मुमकिन था। तभी ज़बान तो तालू से चिपक गई थी, मगर इसने नम निगाहें लिए नफ़ी में सिर हिला दिया था कि इसे इसके बाबा की किसी फ़ैसले से कोई एतराज़ नहीं। नुमान अली ने इसे सीने में भींचा था, फिर इसे अलग हुआ था। मुझे ज़रूरी काम है, मैं अभी आता हूँ रीम। देखता हूँ बारान दिलशेर साहब अपने निकाह ख्वाह को बुलाते हैं या कुछ और कहेंगे। वो निकाह का शाम तक का कह रहे थे, अब कब और कैसे निकाह होगा मैं पूछ कर आता हूँ। नुमान अली कहता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो भरभरी मिट्टी के ढेर की तरह बेड पर शिकस्ता सी गिरने के अंदाज में बैठती चली गई। बेयकीनी से बेयकीनी थी। ये मोहब्बत का ढोंग सिर्फ इस शख्स के लिए एक हार जीत का खेल था, एक शुगल। अब फिर वो इसके वजूद पर अपनी जीत के झंडे गाड़ने चला आया था शायद। रीम ने गहरे गहरे सांस भरते अपने चकराते सर को थामा। मोहब्बत के नाम से ही नफरत के उबाल दिल में उठने लगे। पापा को भी हाँ बोल दिया। मैं ऐसा क्या करूं कि ये निकाह अभी रुक जाए, इस शख्स की जीत हार में बदल जाए, वो यहाँ से खाली हाथ लौट जाए, जैसे मैं इसके दर से तही दामन लौटी थी। इसे भी तो इस तकलीफ़ का अंदाज़ा हो जो मैंने झेली थी। इसे क्यों वो हर चीज़ मैसर हो जो वो चाहता है। मैं क्या कोई खिलौना हूँ इसके हाथ, या कठपुतली कि वो जब चाहेगा जैसे चाहेगा अपनी मर्ज़ी से इसी जानिब घुमा लेगा। रीम की दिमाग की रगें फटने के करीब थी, तभी उठकर खड़ी हुई और अपने दुपट्टे को अपनी मुट्ठियों में दबोचा। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, क्या अपने आप को थोड़ा सा ज़ख्मी कर लूँ। बाबा हॉस्पिटल ले जाएंगे और वक्ती तौर पर ये मुसीबत सर से टल जाएगी। ये वक्त मिल जाए तो फिर इस शख्स को इसके इरादों में शिकस्त देना मेरा काम होगा। वो टेबल पर पड़ी फ्रूट बास्केट में मौजूद तेज़ धार चाकू को देखकर गहरे सोच में थी। फिर किसी हतमी नतीजे पर पहुंचती और उठकर वो चाकू अपनी मुट्ठी में दबाया। लाल भभूका चेहरा लिए इसने वो चाकू अपनी कलाई पर रखा था, मगर फिर दफातन मुंह से हल्की मगर दर्दनाक सी चीख बरामद हुई। वो अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा सिगरेट फूंक रहा था जब जिया इसके पास चला आया। रात या सुबह के मुकाबले में अब खतरे वो पुरसुकून सा नज़र आ रहा था। वो फार्म हाउस में था जब गार्ड ने आकर बताया कि तमाम मेहमान जा चुके हैं, तो वो इस तरफ चला आया था। बात हो गई है नुमान सर से, बारान भाई ने शाम को कहा है निकाह का। जिया ने इसे आकर इतला दी तो वो गाड़ी के डिक्की की जानिब गया था। जिया भी इसके साथ था। एहान ने डिक्की खोली तो जिया को हैरत हुई थी, क्योंकि इसमें बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स में सामान और एक शादी के जोड़े का बड़ा सा बॉक्स था। ये सब कब ख़रीदा तुमने? जिया को तजस्सुस हुआ था। परसों, तसल्ली बख्श मुख्तसर जवाब आया। जब सब कुछ तय किए बैठे थे, सारी तैयारी किए बैठे थे, इसे अपनी दुल्हन या बीवी की सूरत में अपनी ज़िंदगी में तस्लीम कर ही लिया था, तो ये सब मैस क्रिएट करने की ज़रूरत
रथ ही क्या थी आखिर। ये सब तो बंदे का बच्चा बनकर भी किया जा सकता था। जिया दांत पीस कर बोला था। अगर सब नॉर्मल तरीके से हो जाता तो वो किक कैसे मिलती जो अब मिली है। मुतमईन लहजे में कहते इसने शायद जिया को मजीद चढ़ाया था और वो चिढ़ भी गया था। सुनो जिया, ये सामान उठाओ और अंदर जाकर इसे दे आओ और कहना कि निकाह के वक्त ये वाला शादी का जोड़ा पहने। मुझे पसंद नहीं कि वो निकाह मुझसे करे और जोड़ा किसी और के नाम का पहने। मेरे सामने बैठी हो, एहान ने इत्मीनान से कहा। मेरे मुंह से कुछ और मत सुन लेना एहान दिलशेर। निकाह तुम्हारा हो रहा है, मेरा नहीं। वो मनकूहा तुम्हारी होगी तो जाकर खुद दे आओ सामान। या हिम्मत नहीं इसका सामना करने की। वो भड़क कर बोला था। एहान ने इसे खूनखान निगाहों से घूरा और वो सामान उठाकर अंदर की जानिब चल दिया। वो अंदर आया तो सामने ही नुमान अली से सामना हो गया, जो कि इस वक्त लाउंज में अकेला था। जावियार और बारान शायद स्टडी रूम में थे और जैन और महलिक शहर से मौलवी साहब को लेने गए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, एहान ने नुमान अली को सलाम किया, जिसका मुंह में ही नोमान अली ने जवाब दिया था। इसकी आंखों में एहान दिलशेर को वाज़े तौर पर गुस्सा और शदीद नाराज़गी दिखाई दी थी। वो ये सामान मुझे रीम को देना था। एहान के लहजे में पहली मर्तबा नुमान अली को वाज़े झिझक सी महसूस हुई थी। आप ये यहाँ रख दें, मैं पहुँचा दूंगा अंदर, नुमान अली ने सर्द महरी से कहा था। तब एहान ने अपने लब भींचे थे। मुझे इससे बात करनी थी, कुछ बातों की वजाहत देना थी और माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। इसीलिए क्या मैं थोड़ी देर के लिए इससे मिल सकता हूँ? एहान दिलशेर ने पहली मर्तबा नुमान अली से मुल्तजी लहजे में बात की तो नुमान अली ने नाचार आहिस्ता से सर हिलाया था। एहान ने गहरा तरीन सांस भरा था। वो धड़कते दिल और सुन होते दिमाग के साथ इस कमरे में दखल हुआ था, मगर अगला मंजर देख एहान दिलशेर के दिमाग में छोटे छोटे धमाके से होने लगे थे। वो शॉपिंग बैग ज़मीन पर फेंकता इसकी जानिब लपका था। रीम अपनी कलाई पर वो चाकू फेर लेती जब एहान ने बिजली की सी तेज़ी से इसकी दायां हाथ जिसमें चाकू था वो अपने हाथ में जकड़कर इसकी पुश से लगाया था। रीम के मुंह से हल्की सी चीख बरामद हुई थी, मगर इसने दूसरा हाथ इसके बाएं कंधे पर जमा कर इसकी पुश अपने सीने से लगाई थी। एहान दिलशेर के सीने में जो भड़कता लावा था, जैसे इस पर ठंडे पानी के छींटे पड़े थे। वक्त जैसे थम सा गया था। इस नाजुक वजूद के लम्स का एहसास रगों में सुरूर भरने वाला था। इतने दिनों के बाद बेकरार दिल को करार आया था, मगर इसने नोट किया था मुकाबिल सजा संवरा नाजुक सा वजूद जो इस वक्त मुकम्मल इसके बस में इसके हिस्सार में था, वो एकदम साकित हो गया था। वो खौफ व वहशत से अपना सांस तक रोक गई थी। मैं निकाह से पहले तुम्हें छूना नहीं चाहता था, मगर तुमने मुझे मजबूर किया। वो इसके कान के करीब फंकारा था। रीम पे आवाज़ बुरी तरह से रो दी थी, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाकर भी चटपटाई तब भी इस चट्टान से शख्स से अपना आप नहीं छुड़ा पाई। एहान ने दोबारा एक भी लफ्ज़ अपने मुंह से ना निकाला था, बल्कि आंखें मूंद कर एक गहरा सांस अपने अंदर खींचा था कि इस वजूद के हर हिजर में तड़प तड़प कर अब इसकी खुशबू अपनी सांसों में उतार कर ही दिल में सुकून उतरा था। वो इससे हम कलाम नहीं हो रही थी, मगर अब भी बुरी तरह से झटपटा रही थी। तुम्हारी ये खामोशी सिर्फ वसल के लम्हात में मुझे सुकून दे सकती है रीम नोमान अली, लेकिन अभी मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। भारी गंभीर लहजे में की गई बेबाक और गुस्ताख सी सरगोशी ने रीम के तन बदन में एक अनदेखी आग सी भड़का दी थी। तभी वो हलक के बल चिल्लाई थी, बाबा बचाएं मुझे। नुमान अली को कमरे के बाहर महसूस करके रीम ने चिल्लाकर कहा तो अहान ने भी बौखलाकर इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया था। जबकि रीम की चीख सुनकर बाहर खड़े नुमान अली और बारान दिलशेर फ़ौरन से पहले कमरे में आए थे। अगला मंजर इंतहाई गैर मुतवक्का था। वो फूट फूट कर रोती नुमान अली के सीने में छुपी थी। एहान दिलशेर ख्वामख्वाही खफत व सबकी का शिकार हुआ के सिचुएशन के मुताबिक जैसे इसने कुछ किया था, क्योंकि बारान दिलशेर अब गुस्से व मलामत से इसे घूर रहा था। तुम एहान, तुम अभी यहाँ इस रूम में क्या कर रहे हो? बारान दिलशेर की गुस्सीली गुर्राहट पर एहान जज्बस हुआ। वो एहान दिलशेर था जो किसी को वजाहत नहीं दे करता था, लेकिन इस अकवर्ड सी सूरत हाल में इसने जल्दी से अपना मुंह खोला। नुमान अली की परमिशन से ये सामान देने यहाँ आया था, इससे बात करने, मगर मोहतरमा यहाँ सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। वो अब चेहरे पर संजीदगी तारी के इनके सामने अपना हाथ कर गया, जिसमें इसने रीम से चाकू छीन कर पकड़ा हुआ था। इसकी बात पर नुमान अली ने बेयकीनी से इसका चेहरा अपने सीने से निकाला था। रीम, क्या ये सच है? नुमान अली ने सदमे की हालत में इस
से दरियाफ्त किया था तब वो मुजरिम सी बनी फिर से शिद्दत से रोती इसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। वो क्या कर रही थी? कम अज़ कम इस वक्त इन लोगों के सामने अपने पापा को वजाहत नहीं दे सकती थी। तभी फिर से अपना चेहरा छुपा लिया। मुझे अपनी बच्ची से ये उम्मीद नहीं थी रीम। नुमान अली का लहजा शिकवा भरा था। रीम का हिचकियाँ लेता वजूद मजीद बिखरने लगा, जबकि एहान दिलशेरी निगाह इस पर से हट नहीं रही थी। अब ये निकाह अभी और इसी वक्त होगा भाई, मैं मज़ीद वेट नहीं करना चाहता। जैन का मैसेज आया, वो लोग पहुंच गए हैं। ब्यूटिशियन भी ड्राइंग रूम में मौजूद हैं। वो कहता फ़िलहाल बड़ी मुश्किल से इस पर से निगाहें हटाकर पारान दिशेर को शादी के जोड़े वाले बॉक्स की जानिब इशारा करता कमरे से फ़ौरन बाहर निकल गया था। नुमान अली, इस शादी की तमाम जिम्मेदारी अब भी मेरी है, मगर इस वक्त एक रिक्वेस्ट है कि इस निकाह पर गुड़िया हमारा लाया हुआ निकाह का जोड़ा पहने। अभी वो बोल ही रहा था कि एक स्टाइलिश सी लड़की कमरे में दाखिल हुई और आकर ज़मीन पर पड़ा बॉक्स उठाया। गुड़िया को जल्दी से तैयार करवाओ कर बाहर ले आओ। बारान दिलशे कहता कमरे से बाहर निकल गया। रीम नुमान ने इसकी पुश थपथपाई थी तो वो अपने सीने पर भारी चट्टान रखती अपने आंसू पोंछती अपने पापा से अलग हुई। नुमान अली इसके सर पर हाथ रखकर नम निगाहें लिए कमरे से बाहर निकल गया। मैम, आप फेस वॉश करके ये लहंगा पहन ले, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, ब्यूटिशियन ने मखसूस प्रोफेशनल लहजे में मुस्कुराकर इससे कहा था। तब वो दांत अपने लब कुचलती इससे वो बॉक्स पकड़कर वॉशरूम में चली गई। ब्यूटिशियन जा चुकी थी। वो फिर से एक मरतबा ब्लड रेड लहंगे में पूर सजी बैठी थी, मगर अब की बार इसने एक नज़र भी उठाकर खुद को आईने में नहीं देखा था। ब्यूटिशियन ने लहंगे के साथ वाले दुपट्टे को इसके सर पर सेट किया था, जबकि बारीक गोल्डन फैंसी दुपट्टे से इसका चेहरा घूंघट में छुपाया दिया था। इसे नहीं पता था कि अब वो कैसी दिख रही है। वो खुद को देखना चाहती भी नहीं थी। एक ही दिन में दो दो बार दुल्हन बनने का एजाज़ भी इसे ही हासिल हुआ था। इस शख्स ने इसका क्या खूब तमाशा बनाया था। वो अब भी वहाँ पत्थर का बुत बने बैठी थी, सोचते समझने की सलाहियत जैसे मफलूज हो चुकी थी। दिल में कोई एहसास, कोई जज्बा मौजूद नहीं था। वो इस वक्त इतनी खाली अज़हनी का शिकार थी कि कब इसके बाबा कमरे में आए, कब ले जाकर इसे बाहर लाउंज में बिठाया, कब निकाह शुरू हुआ और जब इसने एहान दिशेर को अपनी ज़िंदगी और अपने तमाम तर हकूक़ सौंप दिए, इसे पता ही न चला। एजाब व कबूल का मरहला तय पा गया था। एहान दिलशेर मसरूर सा सबके गले लगता मुबारकबाद वसूल कर रहा था। वो बरसों बाद खुद से बारान दिलशेर के सीने से लगा था। थैंक्स भाई, धीमे सरूर की इसकी सरगोशी से बारान दिलशेर के चेहरे मसरूर कुन सी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। मगर रुखसती भी अभी और इसी वक्त। एहान ने पीछे हटते आंख विंक करते बारान दिलशेर से एक और फरमाइश की तो बारान इसे घूर कर रह गया। रीम मुलाजमा के हमरा अपने कमरे में आ गई थी। कुछ ही देर में वो खाना ले आई थी, मगर इसने ट्रे की जानिब देखा तक नहीं थे। थकावट जैसे रूम में उतर आई थी। भीगी सुर्ख आंखें लिए इसने सोफे के बैग पर अपना सर टिका दिया। दिन की भाग दौड़ में लंच भी काफ़ी लेट हो गया था। तभी अब वो खुशगवार माहौल में लंच करने लगे थे। खाने के बाद बारान दिशे ने नुमान अली से रुखसती की बात की थी। तब भी सही मानों में नुमान अली परेशान हुआ था। लेकिन बारान सर, नुमान अली, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुमने आज रुखसती प्लान नहीं की थी। रीम के पेपर्स के बाद रुखसती होना थी, मगर अब इस का निकाह एहान से हुआ है। दोनों में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत सारी नाराज़गी, जिन्हें इन्हें खुद ही आपस में मिल बैठ कर दूर करना है। और ये तो तब ही मुमकिन है जब दोनों एक दूसरे के पास रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। हमें इन्हें वक्त देना है, एक दूसरे के करीब लाना है। तब मैं वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक होने के बाद बहुत धूमधाम से इनकी हर रस्म अदा करेंगे, रुखसती भी और रिसेप्शन भी। लेकिन अभी ये रुखसती नागुज़ीर है। बारान दिलशेर का लहजा दो टोक था। बेटी का निकाह के बाद ही पराई हो गई थी। बेटी निकाह के बाद ही पराई हो गई थी। हकदार बदल गए थे। अब पहले जैसा हक कहाँ रहा था कि इनकार कर पाता। तभी जिस्म व जान में अंधे की थकावट ने जैसे बसेरा कर लिया। वो शिकस्ता कदमों से रीम के पास आया था। अपने पापा की आहट महसूस कर वो सीधी होकर बैठ गई थी। बाबा, मेहमान चले गए, मैं चेंज करना चाहती हूँ और खाना आपके साथ ही खाऊंगी।
جانتی ہوں اس ساری بھاگ دوڑ پہ آپ نے کبھی بھی ڈنگ سے نہیں کھایا ہوگا۔ وہ اپنے پاپا کے سامنے خود بے حسی کی چادر اوڑھے اپنے کانوں سے بھاری آوازیں اتارنا چاہتی تھی، مگر پھر نعمان علی کی اگلی بات نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ بیٹا یہ چادر اوڑھ لو، رخصتی کا وقت ہو گیا ہے۔ نعمان علی کی مدھم سی آواز پر ریم نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھا۔ پر بابا، رخصتی؟ پیپرز کے بعد لفظ پھنس پھنس کے زبان سے ادا ہوئے۔ ریم کو لگا اس نے حکم نامے پر اس کی روح جسم سے پرواز کر جائے گی۔ میری بچی، بحث مت کرو۔ پیپرز وہاں سے آسانی سے دیے جا سکتے ہیں اور بھائی ملنے آتا رہوں گا، نعمان علی نے کہتے اس کے سر پر شال اڑا دی اور وہ اب پھر سے بے آواز آنسو بہاتی زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر نعمان علی نے جیسے اپنے کلیجے پر پتھر رکھ لیا تھا اور اسے سہارا دیتے باہر لایا۔ بابا، ریم نے سسکتے نعمان علی کی قمیض مٹھی میں دبوچی تھی، مگر وہ اس کی پرسہلاتا اسے لاؤنج سے باہر گاڑی تک لایا تھا، مگر نعمان علی کی اپنی بھی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ گاڑی کے پاس وہ ہچکیوں سے روتی اپنے بابا سے لپٹ گئی تھی۔ وہ لوگ سب گاڑیوں کے آس پاس کھڑے تھے۔ ایہان دشیر نے وہ لرزتا کانپتا ہچکیاں لیتا وجود دیکھا۔ نعمان نے اسے خود سے الگ کیا۔ ایہان پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا اور نعمان علی کی مشکل آسان کرتے آگے بڑھا، نرمی سے اس کی کمر کے گرد ایک بازو مائل کیا تھا۔ نعمان علی نے نرمی سے اپنی قمیض اس کے ہاتھوں سے چھڑوائی تھی۔ ایہان نے اسے سہارا دے کر گاڑی کی بیک سیٹ پر بٹھایا کہ اس وقت اس نازک وجود کی حالت ایسی تھی کہ اسے وہ اپنے سنگ فرنٹ سیٹ پر بٹھائے والا چونچلا نہیں کر سکتا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ ضیا نے سنبھالی تھی اور زین اس کے ساتھ والی سیٹ پر تھا۔ بڑی شان سے اس کی گاڑیاں فارم ہاؤس سے نکلی تھیں۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تھے جب ان کی گاڑیاں ایہان مینشن کے پورچ میں رکی تھیں۔ باران اور زاویار کو ایمرجنسی کال پر یہاں سے جانا پڑا تھا۔ ضیا، زین اور محلک گاڑی سے اتر کر انہیں تنہائی دیتے ڈرائنگ روم میں چلے گئے تھے۔ ایہان گاڑی میں اب پوری طرح اس کی جانب گھوم کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو لمبے سے گھونگھٹ میں لہنگے کے ساتھ کا فینسی دوپٹہ اپنی مٹھی میں دبوچ کر ساکت ہوئی بیٹھی تھی۔ ایہان نے ابھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ گہرے سانس بھرتے گاڑی سے اترا، جب سے اس سے ایک نیا بندھن بندھا تھا، جیسے دل و جان کی کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ تمام غم، غصہ، طیش، اشتعال دودھ میں اٹھتے ابال کی طرح اب بیٹھ چکا تھا۔ وہ پرسکون تھا۔ اس کی جانب کا گاڑی کا دروازہ کھول کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ کسی بھی جان سی گڑیا کی طرح اس کے ذرا سے زور لگانے پر اس کے ساتھ کھینچتی چلی آئی تھی۔ سرشاری کے عالم میں اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے لیے اندر لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح بیہیو کر رہی تھی۔ ابھی وہ اسے چھیڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تمام حساب کتاب رات کے لیے بچا کر رکھے تھے۔ ایہان نے اسے لاؤنج کے صوفے پر بٹھایا۔ اندر روم میں جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، یہ لوگ کھانا اور مصری وغیرہ کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میٹ کو بول دینا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ چہرہ اب بھی نہیں دیکھا کہ چاند گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا، اسی لیے اس کے تاثرات نہیں دیکھ پایا۔ یوں بھی وہ ابھی اس کا چہرہ دیکھ کر خود سے اختیار نہیں کھونا چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے باہر چلا گیا۔ وہ پلٹ ریڈ لہنگے میں پور سجی لاؤنج کے صوفے پر جیسے پتھر بنی بیٹھی تھی۔ آنکھوں کی پتلیاں بھی ساکت ہو چکی تھی۔ جب سے نکاح کی صورت اس ظالم جابر شخص کو اپنے جسم و جاں کے تمام حقوق سونپے تھے، تب سے ایک لفظ نہ آنکھ سے ایک بھی آنسو نکلا تھا۔ ایہان ضیا، زین اور محلک کو رخصت کر کے کسی فاتح کی طرح اپنی بلیک شیروانی کے بٹن کھولتا اندر داخل ہوا تو اسے اسی پوزیشن میں لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک کر اپنی جگہ قدم روکے تھے، حالانکہ وہ اسے بول کر گیا تھا کہ روم میں جا کر آرام کرو۔ ایہان نے ایک گہرا سانس کھینچا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ وہ ساری دنیا کا ہوش بھلائے اس سنہری قاتل حسینہ کو مبہوت سا دیکھے کیا، جو آج اسے اپنے انوکھے اور اجوتے روپ و رنگ سے چاروں شانے چت کر چکی تھی۔ وہ حسین تھی، یہ بات ایہان دشیر جانتا تھا، مگر اس کا نوخیز حسن اس قدر دوآتشہ اور ہوش ربا تھا کہ اسے آج دلہن کے روپ میں پور سجے دیکھ کر سمجھ میں آیا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا تھا۔
रीम, रूम में चलो। एहान ने धीमे लहजे में इसे मुखातिब करते अपना हाथ इसके आगे बढ़ाया था, मगर वो हुनूस पत्थर का बुत बने एक ही पोजीशन में बैठी अपनी बड़ी बड़ी सियाह मेकअप से सजी हसीन आंखों से मुसलसिल किसी गैर मरई नुक्ते को घूरे गई। तो अब की बार एहान के माथे पर एक नन्हा सा बल आया था। तब आगे बढ़कर पूरे हक से इसकी नाजुक कमर के गिर्द बाजू मायल करते दूसरे हाथ से इसका हाथ थामने इसे खड़ा किया और मोहतात कदमों से इसे लिए सीढ़ियाँ चढ़ता ता, ताकि वो भारी लहंगे से उलझ नहीं सके। एहान के बेडरूम के सामने वो अपने कदम वहीं ज़मीन पर जमाते पत्थर बनकर साकित सी हुई तो एहान ने पसलियों से सर पटकते दिल के साथ संजीदगी से इसकी जानिब देखा। वो जो बेजान मूरत की तरह इसके हम कदम थी, इस कमरे के सामने ठटक कर कदम ज़बरदस्ती रोके थे। ये वो जगह थी जहाँ से वो बेइज्जत और बेआबरू होकर अपनी इज्जत नफ्स गंवा कर कसम खाकर निकली थी कि पलट कर इसकी जानिब देखेगी भी नहीं। मगर कुदरत की सितम ज़रफ़ी कहें या इस जालिम शख्स की ज़िद कि वो लौट फिर कर इसी कमरे के सामने आन खड़ी हुई थी। रीम की बर्दाश्त भी बस यहीं तक थी। दिल फटने को था और दिमाग की रगों में खून जैसे मुंजमद सा हुआ था। वो तिवरा कर होश वगैर से बेगाना ज़मीन बोस होती कि वो दो मजबूत आईनी बाजू ने गिरने से पहले ही इसे खुद में समेट लिया था। रीम, इसने तड़प कर इसे पुकारा था। एहान ने लब और आंखें मीचते इस नीम चाँ वजूद को अपनी मजबूत बाहों में भरा। आंखें खोलकर इसकी दिगर को हालत देखी। वो धीमे कदम उठाते इसे कमरे पे लाया था। फूलों से सजे जहाज़ी साइड बेड पर नरमी से इसे उतारा। वो अच्छी तरह जानता था एक हंसती खेलती लड़की को इसने जान का रोग लगा दिया था। ऐसा रोग जिसने इस कोमल नाजुक लड़की की हंसी खुशी जीने की उमंग जैसे छीन से ली थी। लेकिन फिर भी इतनी सोगवारी के बावजूद इस पर जी भरकर दुल्हनहापे का रूप आया था। सुर्ख लहंगे में गंदबी रंगत सोने की तरह दमक रहा था। घनी पल के गुदाज आड़जों पर साया फगन थी। एहान ने इसी नरमी से हाथ आगे बढ़ाए और आहिस्ता आहिस्ता इसके नाजुक वजूद से भारी जेवरात अलग करने लगा। वो इसके दाएं तरफ करीब बैठा इसके बाएं कान का झुमका उतारने इसके ऊपर झुका था। एहान दिलशेर की भारी गंभीर आवाज़ नीम तारीख कमरे के फसूख इस माहौल में गूंजी थी। मेरी मताए हयात, इस सब के बावजूद मेरे वजूद, मेरे दिल और रूह के खालीपन की वजह से कभी भी खुद से ये कबूल और तुम्हारे सामने ये एतराफ़ नहीं करूँगा कि तुम्हारे इस आशिक को तुमसे मोहब्बत नहीं इश्क है। तुम्हें मेरी आँखों में अपने लिए मेरी दीवानगी ढूंढनी होगी। मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ जल्द तुम्हारी रूह में उतर कर तुम्हें अच्छे से बावर करवा दूंगा। जज्बात से बोझल गहरे अल्फाज थे अपने लबों से इसकी गाल छूते वक्त एहान की आंखें में हल्की सी नमी दर आई थी। वो अपने जज्बात पर काबू पाते गहरे सांस भरता बहुत अचानक इस दूर होता ड्रेसिंग में गया था। अपना नाइट ड्रेस पहनकर वो कमरे की रही से ही लाइट्स ऑफ करके साइड लैम्प जला था। इस बेहोश वजूद के करीब नीम दराज हुआ और आंखें पर बाजू रख लिया। भारी होते सर के साथ इसकी आंख खुली थी। जाग कर एक मरतबा फिर इसकी पुतलियाँ नीम तारीख छत के बड़े ना फानूस को घूरती साकित सी थी। वो काफ़ी देर यूं ही लेटी रही, गायब दिमागे से चोर की दुनिया में कदम रखा तो खुद को जिस जगह जिस मुकाम पर पाया इसकी रूह तक तड़प उठी थी कि अंधेरे में देखने के काबिल हुई तो पता चला इसका वजूद दुपट्टे से बेनियाज है। सारी ज्वेलरी उतार दी गई है, सिर्फ इसकी कलाइयों में सुर्ख कांच की चूड़ियाँ मौजूद थी। बाल जो जूड़े में बंधे थे अब सिया आबशार की तरह बेड पर बिखरे हुए थे। खुद को एक अनचाहे शख्स के पहलू में पाया था। यहाँ जो जाग कर इसके उठने का इंतज़ार कर रहा था जान चुका था कि वो जाग गई है और अब जाने कैसे रिएक्ट करेगी। हुआ भी ऐसा ही। वो तड़प कर इसके पहलू से उठना चाहती थी कि बहुत अचानक एहान ने इस बाजू से खींचकर पूरी ताकत से अपनी ओर खींचा था। वो कटी डाल की तरह एक झटके से इसके कुशादा सीने पर आन गिरी थी। एहान ने इसे कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए बगैर इसके घने बालों में हाथ फंसाया और इसे अपने ऊपर झुकाया था। एहान ने इसकी सांसों को अपने महकते लम से महकाया था। रीम माही बे आप की तरह तड़पी। खामोश कमरे की फिजा में इसकी कांच की चूड़ियों की झनकार गूंजी थी।
वो जो इतने दिनों से बेहिस व हरकत पत्थर की मूरत सी बनी हुई थी, अब रग व जान और रूह में अजियत सी दौड़ने लगी तो तमाम हिस्सियात अंगड़ाई लेकर बेदार हुई थी। तभी वो फूट फूट कर रोती थी, अपनी पूरी ताकत लगाकर इस जालिम बेमहर शख्स के जानलेवा गिरफ्त से आज़ादी हासिल करने की कोशिश की, मगर बेसुध। वो जैसे एक ताकतवर आईनी शिकंजे में जकड़ी गई थी। वो जो इसके खुमार आलूद गुर्बत, इसके दिलफरेब लम्ब से मसरूर सा आमे सुकून और नशा सा अपनी रगों में उतरता महसूस कर रहा था। अपने चेहरे पर नमी महसूस करके अहान ने इसकी सांसों को आज़ादी बख्शी थी, मगर इसके वजूद से अपनी आईनी गिरफ्त अब भी नहीं हटाई थी। वो इसके सीने पर खुद को आज़ाद करवाने की तगदो में जी जान लगाते तड़प तड़प कर रो रही थी। तुम्हारी इस आधे फिट की कमर ने 12 रातों को मेरी नींद में खलल डाला है जानम। तो क्या कहती हो आज की रात के तकाजे पूरे करते इसे सजा ना दी जाए? इसे आहान का हाथ बिच्छू की तरह अपनी कमर पर रेंगता महसूस हुआ तो इसके रोने में शिद्दत आई। गुलाब सारे मध्यम दिखाई देते हैं, नज़र जब तेरी कमर का तवाफ करती हैं। इसने फिर से इसके कान में मध्यम सरूर में गंभीर सी सरगोशी की। वो चाहता था वो रोए, अपने अंदर का सारा गुबार निकाल बाहर करे, जो अंदर ही अंदर इसके वजूद इस शख्सियत को दीमक की तरह चाट रहा था। जिस दिन से वो इससे नाराज़ होकर यहाँ से निकली थी, इसने आहान से कलाम नहीं किया था। वो चाहता था वो इससे बात करे, तभी अब इसे यूँ अजियत दे रहा था। यू नो वॉट रीम, आहान दिलशेर, आज इस पूरे मेंशन में हम दोनों के अलावा कोई ज़ीरो मौजूद नहीं। तुम्हारे बाबा भी अपने घर हैं, ये कमरा भी साउंड प्रूफ है, कोई तुम्हारी चीखें और सिसकियाँ सुनने वाला नहीं है। इसीलिए अब अगर नहीं चाहती कि मैं वो सब कर गुजरूं जिसके तसव्वुर से और मेरे ज़रा से छूने से ही तुम मरी जा रही हो, तो मुझसे बात करो। मुझसे बोलती क्यों नहीं? जानबूझकर वो गुस्से की शिद्दत से इसके कान में पंकारा था। बोलती हूँ मैं, वो बेबसी के एहसास से टूट कर बिखरे अल्फाज बोलती निढाल सी हुई थी। एहान ने इसे खुद से हम कलाम होते देखकर नरमी से दाएं जानिब बेड पर उतारा था। ड्रेसिंग में जाओ और चेंज करो जाकर। एहान ने उठकर बैठते गहरी सांस खारिज करते अपने बालों पे हाथ फेरा था। रीम, जिसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, इस बात ने जैसे इसके मुर्दा जिस्म में नई रूह फूंक दी थी। तभी वो फौरन वहाँ से उठकर ड्रेसिंग रूम में गायब हुई थी। वो बेड से उठकर कमरे की बालकोनी में आया था तो रीम एहान दिलशेर के लिए अपने शोहर की गुर्बत इतनी काबिल नफ़रत है कि वो इसके डर से इतने दिनों की नाराज़गी भुलाए इससे हम कलाम हुई होती इसका हर बेजा हुक्म मानने को तैयार है। एहान ने दिल में सोचते अपने लब बुरी तरह से भींचे थे। नफरत बता रही है, मोहब्बत गज़ब की थी। जब वो 20 से 25 मिनट तक बाहर नहीं आई तो आहान के दिल ने पसलियों से सर टकराया था, ये सोच कर कि वो पहले की तरह कोई बेवकूफ़ी ना कर गुजरे। इसीलिए फ़ौरन ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर आकर इसे पुकारा। वो ड्रेसिंग में आई थी, पहले जी भर कर रो लेती के बाद जब रो रो कर निढाल हुई तो निढाल सी आगे बढ़कर अलमारी खोली। अलमारी में इसके साइज़ के कपड़ों का ढेर लगा था। इसे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई थी। एक तरफ फैंसी और दूसरी तरफ सादा कपड़े का ढेर था। ये वैसे ही कपड़े थे जैसे वो घर में पहनती थी। इसने आगे बढ़कर एक टी पैंट कलर की फ्रॉक ट्राउज़र निकाला था और ड्रेस चेंज कर लिया। पिंक दुपट्टे से अच्छे से खुद को ढांपा था। इसे एक मरतबा फिर अपने पापा बहुत बुरी तरह से याद आए थे। वो काफ़ी देर से ड्रेसिंग में ही थी। दिल क्या, बाकी की सारी ज़िंदगी यहीं इसी कैद तन्हाई में गुजार दें, मगर इस शख्स की शक्ल तक ना देखने जिसने इसके नाजुक वजूद पर सितम ढाने की हर हद पार कर दी थी। मगर बाकी तमाम ख्वाहिशात की तरह इसकी ये ख्वाहिश भी हसरत ही रही थी कि भारी आवाज़ में इसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी थी। रीम, कम ऑन, कम आउट। एहान ने इसे पुकारा। वो अपना चेहरा साफ करती आहिस्ता से दरवाज़ा खोल कर बाहर आई थी। एहान की निगाहें इसकी झुकी पलकों में उलझी थी। टी पिंक सादा सी शिफॉन की फ्रॉक में वो सोगवार सी पहले से भी ज़्यादा दिलकश और पुरकशिश लग रही थी। एहान के दिल ने एक बीट मिस की। तुम मैसर हो तो देखने की हद कर देंगे, फिर इसके बाद ये कायनात तक रद्द कर देंगे। सारा मेकअप फैल गया है।
फेस वॉश कर लो, मैं तब तक खाना लगवाता हूँ। क्या खाओगी? ईहान ने एक मर्तबा फिर से इसे बहुत संजीदगी से नॉर्मल मुखातिब किया था कि वो अपने तूफान से शोर मचाते जज्बात पर काबू पाकर खुद को कंपोज कर चुका था। वो इतना डर गई थी कि जानती थी अब चुप नहीं रह सकती, इससे बात ना करके इसे पहले की तरह धुतकार नहीं सकती कि अब जाने वो बेमहर शख्स इसके साथ क्या कर गुजरे। मुझे भूख नहीं है, आराम करना चाहती हूँ, अपनी उंगलियां मड़ोड़ते बमुश्किल कहा था। हालत देखो अपनी, अभी कुछ देर पहले बेहोश हो गई थी। मैं खाना रूम में मंगवा लेता हूँ, बस थोड़ा सा खाकर आराम कर लेना। इसी बेतासुर संजीदा लहजे में कहता वो अपना फ़ोन कान से लगाए फिर से बालकनी में चला गया था। रीम बामर मजबूरी वॉशरूम गई थी और कुछ ही देर में मुंह धोकर अपने दुपट्टे से चेहरा थपथपाती बाहर आई। रीम के कदम अपनी जगह पर जम गए थे कि अब वो सामने सोफे पर बैठा जो फ़ोन स्क्रोलिंग में मसरूफ था, इसके बाहर आते ही पूरी तरह इसकी जाने मुतवज्जे हुआ था। रीम को समझ ना आया वो क्या करे, कहाँ जाए। आंखों में काजल लगाओ, इसके मुतमईन तहकुमाना लहजे पर रीम ने आंखें भींचते अपने लब बुरी तरह से दांतों तले कुचले थे। रीम यहाँ दिलशेर, मेरी चीज़ों पर जुल्म ढाना बंद करो कि इसके लिए सिर्फ मैं ही काफ़ी हूँ। फंकारता सा लहजा था। ईहान के इशारे और बेहुदा बेबाक बात ने रीम के चेहरे से लहू झलकाया था। वो मुठ्ठियाँ भींचती ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ गई थी। रोना थम चुका था कि वो जानती थी इस पत्थर से सर टकराकर वो अपने ही कीमती आंसू बेमोल कर रही है कि इस चट्टान पर इन आंसुओं का कोई असर नहीं होने वाला था। तो इसने फैसला किया था कि वो अपने बाबा की खातिर वो खुद को निढाल करने की बजाय खुद को संभालने की तग व दो करेगी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अहान ने उठकर दरवाज़ा खोला। खान सामा कमाल हाथ में खाने की ट्रे लिए खड़ा था, जो कि इसने थाम ली और इसे जाने का इशारा किया। वो गया तो एहान ने डोर पाँव से लॉक्ड किया था। रीम ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद महंगे तरीन ब्रांड के मेकअप और दीगर चीज़ों का ढेर देखकर एक पल को तो हैरान हुई थी। महंगे तरीन ब्रांड के 8 से 10 काजल रखे हुए थे। इसने जल्दी से इनमें से एक काजल उठाया और आंखों पर लगा लिया। दुआ की अब इन आंखों में नमी ना झलके। वो पीछे मुड़ी तो एहान टेबल पर खाने की ट्रे रख रहा था। आओ खाना खा लो, एहान ने कहा तो वो किसी रोबोट की तरह धीमे कदम उठाती सोफे तक आई थी। मगर 2 सीटर सोफे पर इसके पहलू में बैठना रीम के लिए मौत थी। तभी इसने दो कदम पीछे ही जमा लिए। एहान ने बगौर इसकी जानिब देखा। अपनी कनपटी सहलाते वो सोफे से उठकर खड़ा हुआ था। रीम खौफजदा होकर बेअख्तियार एक कदम पीछे हटी थी। तुम खा लो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, स्टडी में हूँ, कुछ देर में आता हूँ। वो जबड़े भींचते कहता कमरे से जानबूझकर बाहर निकल गया था कि वो पुरसुकून होकर कुछ तो खा ले। रीम अपना रुका हुआ सांस बहाल करती निढाल सी सोफे पर ढह गई थी। इसने उकता कर ट्रे से रुमाल हटाया तो एक मर्तबा फिर हैरत हुई थी। ट्रे में बर्गर, शवरमा, चिकन विंग्स, सैंडविच और पिज़्ज़ा गर्ड्स फास्ट फूड का हर आइटम मौजूद था। इसने काफ़ी दिनों से ढंग से कुछ नहीं खाया था, मगर अब अपनी पसंदीदा चीज़ें देखकर पेट में दर्द और भूख के उबाल से उठने लगे थे। अना ने कहा कुछ नहीं खाना, मगर पेट ने रूह तक दुहाई दी। भला आज तक किसी इंसान की रिक से भी नाराज़गी ज़्यादा देर तक रह पाई थी जो इसकी रहती। इसने कन अखियों से दरवाजे की जानिब देखा और फिर हर चीज़ पर लानत भेजती आखिर पिज़्ज़े का एक स्लाइस उठाकर खाने लगी। एक स्लाइस पिज़्ज़े और आधे शवरमा से ही पेट पूरी तरह से भर गया था। वो अब रिलैक्स होकर कदरे इत्मीनान से चिकन विंग्स खा रही थी। जब एहान को कमरे में दाखिल होते देखा, इसने एक नज़र इसकी जानिब देखा था और जाने रीम को क्यों लगा कि इसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। रीम ने अपना हाथ वहीं खींच लिया था। एहान ने ट्रे में से बस एक सैंडविच उठाया और इसे खड़े हुए ही खाने लगा था। कुछ लोगों की कमर में ब्लैक होल होता है जो इतना जंक फूड खाकर भी इनका वजन 1 ग्राम या कमर 1 इंच भी नहीं बढ़ती। इधर देखो, ऐसे खाने को देखकर भी पूरा पूरा दिन जिम करनी पड़ती है। वो दांतों तले लब दबाता इसे छेड़ने से बाज नहीं आया था और रीम के माथे पर नन्हा सा बल डलते देख हाँ तो वो गहरा मुस्कुराया था, क्योंकि रीम के चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे कहना चाहती हो भाड़ में जाओ। रीम पहलू बदल गई और अपनी
कोल्ड ड्रिंक घूंट घूंट पीने लगी। इहान ने ट्रे उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। वो कमरे में आया तो वो उन्हों सोफे पर टिकी बैठी थी। इहान ने लाइट्स ऑफ की और फिर से बेड पर नीम दराज होकर साइड लैम्प जलाया था। रीम के एक मर्तबा फिर खौफ और वहशत से पसीने छूट गए थे। कमरे का पुरफुसू माहौल इसकी वहशत का सबब था कि कमरे को फूलों की सेज बना दिया गया था। रीम बेड पर आओ और सो जाओ। कमरे की पुरस्रासी सी फिजा में इसकी भारी आवाज़ गूंजी थी। डर की शिद्दत से रीम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। वो अपनी जगह पर लड़ती उठ नहीं पाई थी। तब इसे पुन्ना कर अपनी जानिब आते देख रीम की रूह जैसे फना हुई थी। एहान ने मलगजे अंधेरे में इसे बाजू से दबोचकर अपनी जानिब खींचते इसे अपने रूबरू खड़ा किया था कि एक मर्तबा फिर वो इसकी कुशादा सीने से बुरी तरह से टकराई थी। रीम की सांस इसके सीने में अटक गई थी, जबकि एहान की क्लून की खुशबू और इसकी रूह मोतबर करती खुशबू ने कमरे के पुरखुशू माहौल में मज़ीद रुमानियत पैदा की। छोड़े मुझे, दूर रहें। वो इसकी गिरफ्त में कांटे में फंसी मछली की तरह फड़फड़ाई थी। यू नो वॉट रीम, एहान दिलशेर, आज मैंने अपनी शादी की रात पर कंप्रोमाइज़ किया है। इससे ज़्यादा कि मुझसे तवक्को मत रखना। बच्ची नहीं हो जो मेरी बात समझी नहीं होगी। अब मुझसे ये सोफ़ा मत खेलना। चुपचाप बेड पर लेटो और सो जाओ। सड़ सपाट सा लहजा था। एहान ने लब भींचते इसके लर्जते कांपते नाजुक गुदास मनपसंद वजूद से निगाहें चुराई और जानबूझकर इस पर से अपनी गिरफ्त ढीली की। वो पल में इसकी गिरफ्त से निकलती। फिर रीम ने देर नहीं लगाई थी। बेड पर नीम दराज होकर किनारे पर सिमट कर लेट गई थी। एहान मुठ्ठियाँ बीचते अपनी जगह पर आकर नीम दराज हुआ। आज ये गहरी पुरस्रार रात भला की बेकरारी अपने दामन में समेट कर लाई थी। रीम इस बेड पर लेटी खौफ से कपकपा रही थी, जबकि एहान बेकरारी से पहलू बदल रहा था। बड़ी मुश्किल से नींद की देवी आखिर मेहरबान हुई थी। बहुत देर लगी मगर वो गहरी नींद सो ही गई। लेकिन वो एक झटके से अपनी जगह से उठ बैठा था। बड़ी मुश्किल से एक औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। वो औरत जो खून बनकर इसकी रगों में दौड़ रही थी। ये वो वजूद था जिसे एहान दिलशेर ने अपने दिल व जान और रूह की गहराई से चाहा था। और अब जब मनपसंद वजूद और रग जान जब अपने ही पहलू में पूरी मलकियत और हक से मौजूद थी, तो खुद पर काबू पाना जलते कोयलों पर चलने के मुतरादिफ था। सीने में जज्बात का तूफान सा मचने लगा। इसने जख्मी सी निगाहें से अपने पहलू में बेखबर सोती इस लड़की की कमर को गोरा। खून शाम चुड़ैल, वो दांत पीस कर कहता, झुंझला कर उठा और कमरे से ही बाहर निकल गया। सुबह जब 8 बजे के करीब एहन की आंख खुली तो एक दिल पसीद और दिलकश सा मंजर इसकी आंखों को खैरा करने को बेताब था। वो नाजुक सा दिलकश मखमली नरम व मुलायम वजूद इसके बहुत करीब इसकी जानिब चेहरा किए गहरी नींद में था। गहरे सियाह बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। घने सियाह बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। सियाह मुड़ी हुई पलकें गंदबी सुनहरी शफाफ गालों पर स्याह फिगन थी। भरे भरे गुलाबी लब सख्ती से आपस में भींचे हुए थे। गहरी नींद में भी इसके चेहरे का ये तनाव और नाराज़गी एहान दिल के चेहरे पर दिलफरेब सी मुस्कान बिखेर गई थी। एहान को याद आया वो फजर के लिए उठी थी और कमरे में नमाज अदा की। इसको देखकर एहान भी नाचार उठा था और जाकर नमाज अदा करके आया था। और इसके बाद जो वापस आकर इसे नींद आई थी, ज़िंदगी में ऐसा सुकून पहले कभी कहीं किसी चीज़ में नहीं पाया था। वो नमाज नहीं पढ़ता था, मगर रीम को देखकर जब इसने नमाज पढ़ी तो ऐसा लगा जैसे सदियों से वो जिस सुकून की तलाश में था वो इसे मिल गया है। इसने तय किया था कि इन दोनों के बीच जो गलत फहमियाँ थी वो पूरी तरह दूर किए बगैर इसके करीब नहीं जाएगा कि जिस्मानी तौर पर मुकम्मल इसकी दस्तरस में होने के बावजूद वो जहनी और दिली तौर पर इससे मीलों के फासले पर खड़ी थी। इसीलिए वो अब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके इसे मज़ीद खुद से दूर और बदगुमान नहीं करना चाहता था। मगर रात एक मर्तबा तो इसे अपने तमाम इरादे भरभरी मिट्टी का ढेर होते दिखाई देते थे कि कदम बुरी तरह से डगमगाए थे। मोहब्बत की तलब रोम रोम में बस गई थी। वो इसे बेतहाशा चाहता था।
تو اب محسوس کر کے بھی اپنی روح میں بسانا چاہتا تھا۔ اب بھی اس کا دوپٹہ ایہان کے نیچے آرام فرما رہا تھا، بغیر دوپٹے کے بڑی ہی نازک حالت میں پاس پڑا وہ نازک وجود اس کی ضبط کی چولیں ہلاتا اس کے لیے مکمل سراپا امتحان بن چکا تھا۔ جب جذبوں کے طوفان پر بند باندھنا ناممکن لگا تو احان نے اس کے گرد باہوں کا حصار کھینچ کر اسے اپنے سینے میں بھینچا اور اس کے گھنے سیاہ بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ وہ اپنے بابا کی شہزادی آزاد فضا میں اڑتی کھلکھلاتی ایک سرخ پھولوں کی وادی میں اتری ہوئی تھی۔ وہ پھول بہت خوشگوار اور خوبصورت تھے، وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے چھو کر محسوس کر سکتی تھی، مگر پھر ایک دم منظر بدلا تھا۔ وہ بری طرح سے سہم گئی تھی، اسے وہ پودے اپنے اوپر گرتے بھاری بوجھ سے محسوس ہوئے تھے۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ریم جن پھولوں کے جمگھٹے میں کھڑی تھی، ان کے بڑے بڑے دان نکل آئے تھے اور وہ اس کی گردن اور نازک وجود پر اپنے دان جیسے گاڑ رہے تھے۔ اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ سی برآمد ہوئی۔ وہ ایک طویل سسکی بھر کر گہری نیند سے جاگی تھی، اور نیند سے جاگ کر اگلا منظر انتہائی غیر متوقع تھا کہ اس کی نیند بھگ سے اڑی، اس کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ وہ اس کی گردن میں منہ دیے ہوئے اس گردن پر اپنے لمس کے جان لیوا پھول نچھاور کر رہا تھا، جو کم از کم اس وقت تو ریم کو کانٹے ہی لگے کہ اپنی نازک گردن پر اس کے بیئرڈ کی چبھن سے اسے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اس کے بازوؤں میں بری طرح سے جھٹپٹائی تھی۔ وہ جو جان چکا تھا کہ وہ جاگ گئی ہے، اس کے یوں تلملانا پر گہرا مسکرایا، اور پھر وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی بالکل بھی کہہ نہیں پائی تھی کہ اس کے الفاظ ایہان دلشیر نے اپنی سانسوں میں منتقل کر لیے تھے۔ ریم نے اس کے چٹانی کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس کی گرفت سے آزاد نہ ہو پائی۔ اس کی پرتپش قربت اور دہقتے لمس سے جیسے وہ پگھلتی اپنے پورے وجود میں ایک اندھے کی اذیت سرایت کرتی محسوس کر رہی تھی۔ وصل کے ان نازک لمحات میں جانم تمہارا میری باہوں میں اس شدت سے مچلنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ دیوانگی جان لیوا اور ناقابل برداشت ہے۔ اس کے کان کی لو کو چومتے کی گئی بھاری گمبھیر لہجے کی یہ سرگوشی ریم کو سر تا پیر ایک اندھے کی آگ میں جھونک چکی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتی، اپنی سانس بحال کرتی، اپنے غصہ اور طیش اب پینے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑے مجھے، وہ اس کے کان میں پھنکاری تھی، مگر اس بات کے رد عمل کے طور پر کی گئی اپنے کندھے پر اس کی جان لیوا گستاخی نے ریم کی روح کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ہمیں ہے شوق کہ بے پردہ تم کو دیکھیں گے، تمہیں ہے شرم تو آنکھوں پر ہاتھ دھر لینا۔ اس کے بے پردہ کندھے کی جانب دیکھتا وہ انتہائی بے باک لہجے میں بولا تو ریم نے اپنا پورا زور لگا کر اسے خود سے دور جھٹکا، اور لمحے میں بیڈ سے نیچے اتر کر اب اسی بکھرے سے حلیے میں نم سرخ آنکھیں لیے شعلہ جوالا بنی اسے مشتعل سی گھورنے لگی تھی۔ خود کے اس طرح سے جھٹکے جانے پر ایہان کے تاثرات پل میں بدلے تھے۔ چہرے پر گمبھیر سنجیدگی اور سر سے تاثرات لیے وہ لمبے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا تھا۔ ایک نظر اس کے کپکپاتے بکھرے سے بغیر دوپٹے کے ہوشربا سراپے پر ڈالی اور گہرے سانس بھرتے خود کو کمپوز کرتے اس سے نگاہ چرا لی۔ فار گاڈ سیک ریم، میری خطبت پر ایسے ریاکٹ مت کرو جیسے میں کوئی حرام یا ناجائز کام کر رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ تب کر سنجیدہ لہجے میں بولا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے اگلے الفاظ نے ایہان دلشیر کا پورا وجود روح تک جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ مجھے اپنے بستر پر لانے کے لیے کس سے اور کتنے کی شرط لگائی ہے آپ نے؟ آخر کتنا برداشت کرتی؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ اس نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا۔ ایہان کے چہرے نے پل میں اپنی رنگت بدلی تھی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر۔ ریم نے تیزی سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور سر پر اوڑھتے اس کی بے باک گستاخ نگاہوں سے اپنا وجود چھپایا تھا، مگر ابھی بھی گزشتہ لمحات کے برعکس ایہان دلشیر کے چہرے پر اس قدر سرد و سپاٹ اور خطرناک تاثرات تھے کہ ریم کو بھی ایک مرتبہ تو اپنے الفاظ کی سنگینی کا خیال آیا تھا کہ وہ قدم قدم چلتا اب اس کے قریب ہی تو آ رہا تھا، اور اپنی اس جرأت کے مظاہرے پر ریم کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ ناقابل فہم لہجہ تھا۔ وہی جو آپ نے سنا۔ مجھے پامال کر کے، میری نسوانیت کی دھجیاں اڑا کر مجھے جھکانے کی کس سے شرط لگائی ہے؟ اس نے بھی بے تاثر لہجے میں کہا۔ ایہان نے لپک کر اس کے دونوں بازو اپنے شکنجے میں دبوچے تھے کہ ریم کے لبوں سے درد بھری سسکی سی برآمد ہوئی۔ وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔
اپنے الفاظ واپس لو ریم احان دلشیر، نکاح سے پہلے ہمارے بیچ جو ہوا سو ہوا، نکاح کے بعد میں یہ واہیات بات ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ آپ وہ سب کر سکتے ہیں تو میں کہہ بھی نہیں سکتی؟ بہت انا ہے نا آپ میں، جو مجھے چکانا اور توڑنا چاہتے تھے۔ تو پھر بتائیں، جس ڈرائیور کی بیٹی سے آپ مذاق کرنا پسند نہیں کرتے، اس سے نکاح کیسے کرنا پسند کر لیا آپ نے؟ کسی شرط کو ہی جیتنے کی خاطر، ہے نا؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی۔ احان اب اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھے کیا، وہ سب کرنا کتنا آسان تھا اور اب اسے جھیلنا اور واپس سننا کس قدر عذابناک۔ اسی لیے جب وہ بولا تو اس کا لہجہ دھیما مگر سنجیدہ تھا۔ ریم بھول جاؤ وہ سب باتیں، میں بھی بھول جانا چاہتا ہوں۔ ختم کرو ماضی کے قصے، کل ایک نئی شروعات ہوئی ہے ہمارے بیچ اور ہرگز نہیں، نہ میں خود بھولوں گی نہ آپ کو بھی کچھ بھولنے دوں گی۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، اب آپ کے کسی جھانسے میں نہیں آؤں گی، اسی لیے مجھے پھر سے چھونے یا ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، سمجھے آپ؟ اس نے نفرت انگیز لہجے میں کہتے خود سے اس کے ہاتھ دور جھٹکے تھے۔ دوسری جانب جس منہ سے محبت کا اظہار سن کر وہ ہواؤں میں اڑنے لگا تھا، اب اسی منہ سے نفرت کا پرچار سن کر اس کے دل نے دھڑکنے سے انکار کیا تھا۔ ریئلی؟ اگر اتنی ہی نفرت تھی تو مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ انکار بھی کر سکتی تھی نا تم؟ احان دلشیر نے اسے تپانے والے انداز میں کہتے جیسے اس کی دکھتی رگ دبائی تھی۔ وہ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے کم ظرف بھائی باران دلشیر نے کیسے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے میرے بابا کو بلیک میل کیا، اپنے احسانات کا بدلہ مانگا یا انہیں ڈرایا دھمکایا تھا؟ کیا کیا ان کے ساتھ کہ وہ اپنے دوست کی بھی پرواہ نہ کرتے یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے، اور میں نے یہ صرف اور صرف اپنے بابا کی وجہ سے کیا؟ وہ چیخ کر کہتی سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ غم و غصے سے ٹیبل پر پڑا لیمپ دھماکے سے نیچے گرا کر چکنا چور کیا تھا۔ احان پھولی ماتھے کی رگوں اور بھیجے ہوئے جبڑے سمیت مٹھیاں بیچ کر اسے دیکھے کیا؟ ریم تمیز سے نام لو ان کا، بڑے بھائی ہیں وہ میرے باپ کے برابر، اور تمہارے جیٹھ، جو کہنا ہے مجھے کہو، ان کے خلاف تمہارے منہ سے نکلا ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا میں، احان نے سرد مہری سے کہا تھا۔ وہ بری طرح سے اپنے لب کاٹتے اب اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں آپ سے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتی، جائیں یہاں سے، وہ بھرائی آواز میں تڑپ کر بولی تھی۔ پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں، یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نیچے پہنچو۔ وہ فی الحال یہ بحث سمیٹتا بے تاثر سرد حکمیہ لہجے میں کہتا چپاک سے ڈریسنگ روم میں غائب ہوا تھا۔ ریم فوراً سے پہلے اس کمرے سے نکلی تھی۔ کیمل کلر کی ٹاپس میں وہ پہلے جیسا نک سا تیار، نم آدھے بالوں کا سر پر بن بنائے ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر گرما گرم بریک فاسٹ لگا ہوا تھا۔ اس نے ٹیبل پر بیٹھ کر کرسی آگے کھسکائی۔ احان کو لگا تھا شاید وہ کچن میں ہو، کیونکہ کمرے میں نہیں تھی، مگر کچن میں صرف دو ملازمہ کو دیکھ کر اس نے آنکھیں بھیج کر ایک سٹ سی سانس اپنے اندر کھینچی۔ ملازمہ فریش جوس کا جگ لیے باہر آئی تھی۔ سنو، میڈم کو بریک فاسٹ کے لیے بلا لاؤ، کہنا چھوٹے صاحب نے کہا ہے کہ تمہارے کہنے پر نیچے آ جائیں، نہیں تو اگر میں بلانے آیا تو صرف بلاؤں گا نہیں، تمہاری کمر توڑ کر اس کا کچمبر بنا دوں گا۔ اطمینان سے کہتے اب وہ اپنی پلیٹ پر جھک چکا تھا کہ جانتا تھا اس کے ان الفاظ کے گستاخی بھرے بے باک معنی و مطلب وہ خود اچھے سے سمجھ جائے گی۔ جبکہ ملازمہ نے اچنبھے سے اپنے چھوٹے صاحب کو دیکھا کہ ان کے ہاں تو بیوی پر رعب جمانے کے لیے ٹانگیں توڑنے کی دھمکی دی جاتی تھی، یہ کمر کا کیا مطلب تھا؟ مگر پوچھنے کی ہمت کون کرتا، اسی لیے وہ چپ چاپ احان کے روم میں گئی تھی، مگر میڈم وہاں موجود نہیں تھی تو اس نے ساتھ والے کمرے میں جھانکا۔ کچھ ہی دیر بعد ملازمہ اسے نیچے اکیلی آتی دکھائی دی تو احان کے ماتھے پر بالوں کا جال سا بچھا تھا۔ خود وہ اپنا آدھا بریک فاسٹ تو کر ہی چکا تھا۔ چھوٹے صاحب، میڈم کو تو بہت تیز بخار ہے۔ ملازمہ کی پریشان آواز سن کر وہ چونکا تھا۔ واٹ؟ اسے پریشانی ہوئی تھی؟ سب کچھ وہیں چھوڑ کر جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ میڈم کے لیے کچھ ہلکا پھلکا روم میں ہی لے آؤ، اور وہ کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اوپر کی جانب آیا تھا۔ اپنے کمرے کے ساتھ والے کمرے کا کھلا دروازہ دیکھ وہ گہری سانس بھرتا اندر داخل ہوا تو وہ بخار کی حدت سے تپتا سرخ چہرہ لیے صوفے پر آنکھیں مودے نیم دراز تھی۔ احان نے قریب آ کر اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے ماتھے کو چھوا تھا کہ وہ کرنٹ کھا کر
सीधी होके एक रूह मोतबर करता खुशबुओं का रेला था जो हवास मुख्तल कर देने वाला था। अपने हाथ दूर रखें मुझसे, वो इसके फिर से करीब आने पर भड़क गई थी, मगर इसके बावजूद इस यूनानी सुर्ख व सफ़ेद देवता को अपने इतने करीब पाकर दिल बुरी तरह से धड़का था। इसीलिए शायद अपने दिल की धड़कन बुरी तरह से मुंतशिर हुई थी। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हूँ? टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ। एहान ने दांतों तले लब दबाकर अपनी मुस्कुराहट जब्त की थी। इसका अपना कलसना अब दिल में एक सुरूर कौन सी गुदगुदी कर रहा था। मुझे आपकी हमदर्दी और इस झूठी फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं, वो बेजार से बोली थी। मगर एहान ने झुककर सोफे पर इसके दाएं बाएं सोफे की टेक पर हाथ रखे तो वो जैसे सांस तक रोक गई थी। एनुअल सेमेस्टर सर पर है, यूनिवर्सिटी नहीं जाना तुम्हें तो बड़ा आदमी बनना है ना? इस वजाहत के शाहकार शहजादे ने अपनी जादू भरी पुरकशिश भूरी आंखों से इसकी स्याह जगमगाती आंखों में झांका था। शायद वो फिर से इस पर अपनी शानदार पर्सनालिटी का जादू जगाकर इसे अपनी जानिब राग़िब करना चाहता था। मम, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कल चली जाऊंगी, आप चले जाएं। वो इसके एटीट्यूड से और चेहरे पर पड़ती इसकी गर्म खुशबू भरी सांसों की तपिश से सचमुच नर्वस होती थी, मगर इस पर हरगिज़ ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। इसीलिए बेजारगी से बोली ताकि वो वहाँ से चला जाए। चलो जल्दी से उठो, डॉक्टर के पास ले चलो। वो मसरूफ़ से अंदाज में घड़ी में वक्त देखता बोला था। मुझे कहीं नहीं जाना, मेडिसिन है मेरे पास, मुझे फ़िलहाल सिर्फ पापा से मिलना जाना है, वो चिढ़कर बोली थी। मगर एहान ने अपनी शहादत की उंगली और अंगूठी से इसके निचले लब को पकड़कर रब किया था। ओ बाबा गर्ल, बाबा की प्रिंसेस, फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर पर तवज्जो दो। आखिर शादी का पहला दिन है और तुम्हारे कहीं नहीं जाने की तो ऐसी की तैसी। इसने कहते एक लम्हे में इसे किसी नाजुक गुड़िया की तरह अपनी चट्टानी बाहों में भरा तो वो बुरी तरह से बौखलाई थी। हाउ डेयर यू अहान दिलशेर, मुझे नीचे उतारे। लीव मी, रीम ने चटपटाते इसके सीने पर मुक्के मार रहे थे, मगर इस पर ज़रा भी असर नहीं हुआ था। मुसलसल खूबसूरत आंखों में शरारत भरी चमक और मुस्कान थी। एहान इसीलिए अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मुलाजमा पहले से मौजूद वहाँ रखे टेबल पर नाश्ते की ट्रे रख रही थी। ये मंजर देख हौनक मनी मुंह खोले इन्हें देखेगे। रीम का दिल किया ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए, जबकि इधर इसने डीटपन का आला तरीन मुजाहरा करते इत्मीनान से इसे बेड पर उतारा था। और फिर एहान दिलशेर के अगले अल्फाज पर रीम ने अपना लहू झलकाता चेहरा तकिए में छिपा लिया था। जाओ यहाँ से कि पूरी फिल्म देख कर जाना है। एहान ने इसे डपटा तो वो बौखला कर सर पर पाँव रख कर वहाँ से भागी और जाते वक्त दरवाज़ा लॉक करना नहीं भूली थी। अब वो पूरी तरह इसकी जानिब मतवज्जे हुआ था और इसकी शर्म व हया के बायस गैर होती हालत पर महसूस होता दरीक मुस्कुरा रहा था। एहान ने इसके दाएं बाएं अपने दोनों हाथ रखे और इस पर ज़रा सा झुका। जानम, अब उठकर जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। मेरी बात ना मानी तो आज भी ये जंबो साइज चूहा तुम्हारे ये नाजुक और कमदार कमर कतर देगा। गंभीर लहजे में की गई जुमानी बात पर रीम के असाब झुंझुना उठे, जबकि दिल गोया कानों में धड़कने लगा था। वो एक झटके से सीधी हुई थी और शर्म व हया के शिद्दत के बायस पूरा वजूद जैसे लड़स रहा था। चेहरे ने लहू झलकाया और नाजुक कलाबी लब कपकपाए उठे थे। आप, हया से टूटते गोया अल्फाज भी साकत हो गए थे। वो जिसने निकाह से पहले कभी इसका हाथ तक ना थामा था, अब ये बेबाक और गुस्ताख रौब दिखा रहा था। इसे रात से हिरासा किए बार बार खुद में सिमट कर छिप जाने पर मजबूर कर रहा था। मुझे पहले अंदाज़ा नहीं था आप इस कदर बेशरम और बेहया होंगे। कुछ देर पहले मुलाजमा से वो सब कहने की क्या ज़रूरत थी और अब ये शर्म नहीं आती आपको? वो झुंझला कर भड़कते हुए बोली थी। पहली बात का जवाब, मेरे मिजाज का तुम्हें पहले कैसे अंदाज़ा होता जाने जान? पहले तुम मेरी बीवी नहीं थी। और दूसरी बात का जवाब, अगर थोड़ा बेशरम और बेहया ना हुआ तो फिर मैं बाबा कैसे बनूंगा? इंतहाई इत्मीनान से कनपट्टी रब करते जवाब दिया गया था। रीम का एक मर्तबा फिर गोया हलक में कलेजा अटक गया था। वो लब कुचल कर रह गई, मगर वो मज़ीद इस पर झुका था और अपने अंगूठे से इसके दांतों से नाजुक लब आज़ाद किए। ओ नो, बहुत नाजुक हैं ये, इन पर ये जुल्म मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो फिर से गंभीर लहजे में कहते अपने
ایٹیٹیوڈ سے اس کا دل لرزا گیا تھا۔ اب شاید خود کی حالت خراب ہوئی تھی تو ایہان پیچھے ہٹا اور ٹیبل پر سے ناشتے کی پلیٹ لا کر اس کے سامنے رکھی۔ ایہان نے اسے کھانے کا اشارہ کیا تو ریم بحث سے بچنے کے لیے بمشکل نوالے زہر مار کرنے لگی۔ وہ انڈے کے ساتھ ایک سلائس ہی کھا پائی تھی۔ میڈیسن کدھر ہے؟ ایہان نے پوچھا تو ریم نے سائڈ ٹیبل سے اپنا پرس اٹھا کر اس میں سے میڈیسن نکالی۔ دودھ کے ساتھ لو۔ اس سے پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتا دیکھ کر ایہان نے اسے ٹوکا تو ریم نے منہ بسوڑتے بڑی مشکل سے کڑوی شکلیں بناتے دودھ کا گلاس اٹھایا اور میڈیسن لے کر آدھا گلاس پی کر گلاس رکھ دیا تھا۔ آرام کرو، میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، جلد لوٹ آؤں گا۔ اچانک سے وہ جھکا اور اس کی گداز پھولی ہوئی گال کو اپنے لبوں سے زور سے دبایا۔ ریم جب تک کوئی ری ایکشن دیتی وہ ایک دہکتا پرتپش لمح اس کے گال پر چھوڑتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دانت کھچکھچاتے اس ڈیٹ کو سلواتے نوازتے وہ کمفرٹر میں گھس گئی تھی۔